Morning, all of you. Today we start again the same numericals जो पिछले टर्म पर numericals कराए थे वही सारे numericals अपन फिर देखते हैं. Today suppose there are the two helium balloons A and B are connected with the help thread and a body is attached. The mass of this body is m. The separation is d. Balloon A have the same charge, suppose positive. The balloon B have the same charge, suppose q. The question is that find out the value of charge for equilibrium of this system. ये जो सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस चार्ज की क्या वैल्यू होगी. आपके पास दो बलून थे जो इस तरीके से पड़े, सेम चार्ज की वजह से दे विल रिपल. Here this is the vertical lines. Suppose angle is theta. Suppose this angle is theta. Tension produced in this thread is T. Tension produced in the thread is T. On resolving this T, इसको रिजॉल्व करेंगे. पिछले टर्म पर बोला कि जिसके साथ एंगल होता है उसमें हमेशा कंपोनेंट कॉस आता है, इसलिए दिस विल बी द कंपोनेंट T cos थीटा हियर. और यहां पर इसका जो कंपोनेंट होगा वो भी T cos थीटा होगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. इस समय इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट इज रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स इज माय डियर Fe. इस समय ये एंगल जो है वो फिर से थीटा हो सकता है क्या. ये एंगल 90 है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा. इसलिए इस समय इस T का कंपोनेंट इधर अगर हम देखेंगे तो ये आएगा माय डियर T cos 90 माइनस थीटा, और इसलिए ये हो जाएगा माय डियर T sin थीटा. इस समय इस बॉडी का जो वेट होगा माय डियर W इक्वल टू mg. नाउ वी कैन से द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस चार्जेस, दैट इज दिस some constant k, product of the charges upon square of distance, it becomes k q square upon d square. Now this weight should be balanced by this. So for equilibrium condition the weight should be balanced by these two components. The upward force should be balanced by the downward force, and this will be balanced by this, that is T sin theta. This is T cos 90 minus theta, cos 90 minus theta sin theta. So that we can say T sin theta my dear equal to Fe से बैलेंस होगा, और यहाँ पर ये T plus T cos theta, that is T cos theta plus T cos theta, it should be balanced by the weight. इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये होगा माय डियर T sin थीटा अपॉन T, दैट इज 2T cos थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg. नाउ दैट विल बी T विल बी कैंसिल्ड माय डियर, T से T कैंसिल, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा अपॉन 2. व्हाट इज Fe माय डियर k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर अपॉन माय डियर mg. हमको चाहिए माय डियर क्या सर, अब k की वैल्यू फाइंड करनी है. आप सब लोग देख सकते हैं सर k की वैल्यू क्या आ जाएगी. अब यहां से दैट विल बी 2 और दिस वन, सो 2k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हियर 2k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर
या डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। सो के क्यू स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एम जी, ये tan थीटा होगा और अपॉन में आएगा 2। सो नाउ योर फाइनल आंसर माय डियर, दैट इज क्यू स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एम जी tan थीटा अपॉन 2k। सो q इक्वल टू स्क्वायर रूट डी स्क्वायर एम जी tan थीटा अपॉन 2k। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, राइट डाउन द नोट्स। Now we start the next question, my dear. इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कि अगर आपके पास कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, उस पर कोई चार्ज है, सपोज दिस वन ए स्फेरिकल बॉडी हैविंग द चार्ज माइनस क्यू। नाउ वी kept here a positive charge body B that having the plus q charge. Then this body will be attract to this body, तो बॉडी अट्रैक्ट हुई तो इस समय ये चार्ज यहां आ गया। This is the negatively charged body minus q. The angle is, my dear, 45 degree. The distance suppose between these two bodies is small a. The question is that, my dear, here that कि this one is the body suspended with the help of thread. Suppose the length of this thread is something L. When this positively charged body is kept near to it, try to attack this, so body is reaches here. The separation between these A and B is small a. My question is that कि what the value of Q? What is the value of Q? So this body becomes in equilibrium. यही बनी रहे। So now again we start question. The answer is that sir कि अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका वेट W इक्वल टू नीचे जाएगा। इस समय इस थ्रेड में टेंशन लगेगा T। इस टेंशन T को रिजॉल्व करेंगे, नंबर 1 वर्टिकल कंपोनेंट, नंबर 2 माय डियर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल भी 45 ड्यू टू वर्टिकल एंड अपोजिट। So that will be, my dear, is T cos 45, जिसके साथ एंगल उसमें cos आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं उसमें T sin 45, that is sin आएगा। इस समय इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, that will be the electric force, that is Fe, the force between the two charges. So now we can calculate Fe is equal to some constant product of the charges upon square of distance, that is K Q square upon A square. नाउ फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हम वेरी फास्ट, अब हमको प्रैक्टिस हो गई है सर कि बार बार न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर देखने पर वी हैव टू रेडी फॉर दिस सच टाइप सॉल्यूशन। क्या कि सर इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल फोर्स विल इक्वल एंड अपोजिट एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। सो नाउ Fe इक्वल टू क्या होगा, T sin 45 से बैलेंस होना चाहिए, और ये जो आपका वेट है mg, इट शुड बी बैलेंस बाय T cos 45। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करिएगा माय डियर। जब इनको डिवाइड करेंगे T से T कैंसिल होगा, Fe की जगह पर
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा अपॉन माय डियर एम जी होगा, और इसका टू साइन 45 अपॉन कॉस 45 इज आई थिंक दैट tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है माय डियर 1, tan 45 is 1, so that is now k q square upon a square into mg is equal to 1, so k q square is equal to a square mg, so q square is equal to a square mg upon k, so final answer my dear q is equal to under root a square mg upon k. Note down, please fast note down. I think that you have to note it please. Now we start the equilibrium positions के numericals start करते हैं, please write down.